जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाही। संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। सिर ऊपर मरना। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ महाराज जी की पावन अते पवित्र गोद के अंदर बुजुर्ग माता प्यार कौर जी की अंतिम अरदास नूं मुख रखदियां होयां जुड़ बैठे गुरु खालसा जीओ। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी अते इतिहास की विचार मैं आरंभ करां। उस तो पहला आप जी पास पुरजोर बेनती है कि असी सारे जाने इकागर भाव नूं पैदा करिए। सतगुरु जी की पवित्र बाणी दे विच एक बड़ा ही प्यारा शब्द है। उस शब्द दे विच एक साडे घरां दी खास करके बीबियां दे हत्थां दे किरत दी एक उदाहरण है। वो उदाहरण की है मातावां जड़ा ध्यान नाल सुन। घर विच कपड़े पाट जाते हैं ते कपड़ियां नूं सिउण दे लई असीं दो चीज़ां दी वरतों करते हैं, एक सूई ते एक धागा। सूई ते धागा आपस विच मिला के एक सियाणी सुवाणी पाटे हुए कपड़े नूं सिउं देंदी है, त्रोपे ला देंदी है, नगंदे भर देंदी है। सतगुरु जी ने इस उदाहरण नूं बाणी दे विच सुनन दे परथाए लिया। सतगुरु जी कहंदे गुरु दा शब्द सूई है अते साडी सुरत धागा है। जिवें सूई दे विच धागा पै जांदा है ते पाटा होया कपड़ा सीता जांदा है, इवें किते साडी सुरत जिहड़ी है ये गुरु दे शब्द विच पै जाए। फिर ध्यान नाल समझना। मातावां पास मैं फिर बेनती करांगा कि असी अपने ध्यान नूं गुरु के शब्द वाल मोड़न की कृपालता करिए। गुरु के शब्द वाल इस ध्यान नूं आपां मोड़िए, ये बेनती है। ताई असी विचार नूं समझ पावांगे, ताई असी विचार नूं कर पावांगे। तो सतगुरु ने बाणी दे विच ये वचन अर्ज किया है। सतगुरु जी कहंदे सोने की सूई रूपे का तागा। सोने की सूई का भाव है कि गुरु का शब्द जिहड़ा है वह सोने वर्गा है।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੋਨੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਰੂਪਾ ਰੂਪੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਚਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤਾਤ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਢਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਰਕ ਦੀ ਕਢਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੂਈ ਤੇ ਧਾਗਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਟਾ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਾ ਸਿਉਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜ ਜਾਏ ਨਾ, ਇਉਂ ਪਤ ਪਾਟੀ ਸਿਫਤੀ ਸੀਪੈ ਨਾਨਕ ਜੀਵਤ ਜੀਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਟ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਖਬਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜਾ ਸਿਆਣੀ ਸਵਾਣੀ ਸੂਈ ਤੇ ਧਾਗੇ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਸਿਉਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਟੀ ਹੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਇਹ ਸਿਉਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਇਉਂ ਪਤ ਪਾਟੀ ਸਿਫਤੀ ਸੀਪੈ ਨਾਨਕ ਜੀਵਤ ਜੀਵੈ। ਸੋ ਆਓ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਡੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਮਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਤਸੰਗ ਕਰਤੇ ਬਾਤ ਚਲਾਵੈ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਤੇ ਬਾਤ ਚਲਾਵੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੈ ਸਿੰਘ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਇਕਾਗਰ ਭਾਵ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਿਛੋਕੜ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਗਾਂਹ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਕਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਅਕਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਮੌਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਬਾਤ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਧਨ ਲੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤਨ ਲੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ
मन लुट जाते सन। इथों तक अखाण प्रचलित हो गई सी, लोग कहन लग पे खादा पीता लाहे दा रहिंदा अहमद शाहे दा। ये अखाण सी। अखाण का भाव है जो तुहाडे कोल खादा जांदा है खा लो, नहीं तो बाहरों हमलावर आएगा लुट पुट के लै जाएगा, तुहाडे कोल कुछ नहीं बचना। उन्हां हमलावरां ने खास करके साडे पंजाब दी जिथों दी साडी पैदाइश है उस इलाके की दुर्दशा बहुत माड़ी कर दी। पर जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे सिंह खड़े होए, खालसा खड़ा होया, खालसे ने तलवार सूत लई, तां उस हाकम दे बारे जिहदे बारे ये कहिंदे सन लोग कि खादा पीता लाहे दा रहिंदा अहमद शाहे दा, उस हाकम दे बारे ही ये गल होण लग पई। एक दिन वो हाकम ही पुछदा है, अहमद शाह अब्दाली पुछदा है किहदे कोल? नादर शाह पुछदा है किहदे कोल? इत्थों दे लोकां दे कोल। की पुछदा है? पुछदा यह है कि ये वड्डियां वड्डियां कशहरियां वाले, ये वड्डे वड्डे मुशहरियां वाले, ये वड्डियां वड्डियां पग्गां वाले, ये उच्चे दमालियां वाले लोग कौन ने? इन्हां बारे सानू दसो। सानू इन्ने साल हो गए ने, 722 ईस्वी दे विच पहला हमला कीता सीगा अरब तो आउण वालियां ने। 722 तो लैके ते 1700 कुछ तक हमले लगातार चलते रहे ने। 1000 साल लगभग हमला होया। वो कहन लगा 1000 साल हो गए ने सानू हमला करदियां नूं, अज तक साडा राह किसी ने नहीं रोकिया। ये साडा राह रोकण वाले कौन ने? इन्हां बारे दसो। तां जिहड़ियां गल्लां उत्थे अहमद शाह अब्दाली ते नादर शाह दुरानी नूं दसियां गईयां, उन्हां चों पहली गल जिहड़ी सी ना ਉਹ मौत के मुतलक सी, और मौत के नाल जुड़ी हुई सी। इतिहास पढ़ के वेखो, उहदे च दस्सिया गया उन्होंने अहमद शाह अब्दाली ते नादर शाह नूं दस्सिया गया ये सधारण बंदे नहीं, इन्हों आम बंदे ना जानी, इन्हों आम इंसान ना समझी। कहंदा फिर है कौन ने? कहंदा ये बड़े जुझारू ने, ये बड़े योधे ने, ये बड़े सिर लथ ने। कहना मैनू पता किवें लगे बड़े सिर लथ ने, बड़े योधे ने, बड़े जुझारू ने? तां दस्सण वाले ने दस्सिया। कहंदा फिर आ तैनूं दसदा। कहंदा दस फिर इन्हां बारे। दस्सण लगा, उन्हें सब तो पहली गल कही। कहंदा जदों इन्हां दे घरे मौत हो जाती है ना, ये गल एक दुश्मन अपने दुश्मन नूं दुश्मन बारे दस रहा। याद रखियो, दुश्मन कदी भी दुश्मन की सिफत नहीं करता, दुश्मन कदी दुश्मन की सिफत नहीं करता। दुश्मन हमेशा दुश्मन की कमी दसिया करता है। पर इत्थे होया ये उल्टा है कि दसन वाले ने सिखां की कमी नहीं दसी, सगों सिखां की सिफत की। नादर शाह ते अहमद शाह अब्दाली के सामने दसिया कि कहना जदों इन्हां दे घरे कोई मौत हो जाती है ना, ये रोंदे नहीं, ये रोंदे नहीं। कहंदा फिर ये करदे की ने? इस गल नूं ध्यान नाल सोचियो। एक दुश्मन बारे एक दुश्मन नूं दस रहा है। 3 दुश्मन ने। किवें? एक धिर है सिख, एक धिर है दसण वाला, एक धिर है सुनने वाला। जिहड़ा सुनने वाला है वह भी सिखां नूं दुश्मन समझदा है, जिहड़ा दसण वाला है वह भी सिखां नूं दुश्मन समझदा है। पर फिर भी वह सिखां की सिफत करता है। कहता जदों इन्हां दे घरे मौत हो जाती है रोंदे नहीं। कहता फिर करदे की ने? कहता ये तो अपने गुरु की बाणी पढ़ते ने। कहता होर की करते ने? कहता एक होर कमाल की गल है, एक पासे इन्हां दे घरे बंदे की लाश पई हुंदी है, दूजे पासे इन्हां दे घरे ही इन्हां दे चुल्हे दे उपर मिष्टान प्रशाद बन रहा हुंदा है, कड़ा प्रशाद। दूजी गल उन्हें यह दसी, क्योंकि आम करके बाकी जिन्ने भी धर्म ने ना, तुसी हिंदू धर्म पढ़ो, इस्लाम पढ़ो, बौद्ध धर्म पढ़ो, ईसाई धर्म पढ़ो, जदों उन्हां दे घरे मौत हुंदी है ना तो मिठा नहीं बनाउंदे। वो मानते ने कि ये खुशी का प्रतीक है, वो मानते ने कि ये खुशी वेले खाधी जाती चीज़ है। पर साडे घरे एक पासे प्राणी की लाश पई है तो दूजे बने आके गुरु के गुरु घर का वजीर
सानू आके कहंदा जी रस दो, इन्नी खंड दे दो, इन्ना घ्यो दे दो, इन्ना आटा दे दो, त्रिभावल बनाउणा है। कड़ाह प्रसाद बनाया जाता है ते बना के उस तो बाद कल्ले नहीं छकिया जाता, सारी संगत नूं छकाया जाता, जिन्ने जी आउंदे ने सारिआं नूं छकाया जाता है। दूजी गल यह दसी, तीजी गल कहंदा होर की करदे ने, वो दसण वाला कहंदा होर दा पता नहीं, पर मैं सुनिया इन्हां दे घरे जदों मौत हो जाए ना ते उच्ची उच्ची करदे ने वाहेगुरू 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 वाहेगुरू। कहंदा इन्हां मैनूं पता है ये वाहेगुरू दा सिमरन करदे ने। जदों ये तीन गल्लां दसियां गईयां, इन्हां तीन गल्लां नूं बयान दसिया गया, तां जिहड़ा सुनन वाला सी ना अहमद शाह अब्दाली, वो कहण लगा वो समा दूर नहीं जदों ये कौम दुनिया की सब तो सिखरली कौम होवेगी। इस कौम का नाम दुनिया दियां सिखर वालियां कौमां दे विच लिखिया जाएगा। इस कौम का जिक्र दुनिया दियां बहादुर कौमां दे विच आएगा। समय ने अपनी करवट बदली, साडा नाम एक दिन दुनिया दियां बहादुर कौमां दे विच आया ते अज भी है। बेशक भावें सानू मार बड़ी वजी है, वक्त ने सानू बड़ा चीरिया ते पाड़िया है, वक्त ने सानू बड़ा रुलाया ते रोलिया है, पर फिर भी साडा जिक्र किते ना किते पहल कदमी दे विच आ जांदा। मैं अगे तुरा, मैं गल शुरू कीती सीगी कि साडे विच जिहड़े लफ्ज़ वरते गए ना मौत वास्ते, वो चढ़दी कला च वरते गए। ये वरत्या गया, आख्या गया अकाल चलाना कर गया है, आख्या गया चढ़ाई कर गया है। ये लफ्ज़ चढ़दी कला दे ने, भाव साडे विच मौत नूं भी चढ़दी कला दे विच समझिया गया, ढैंदी कला च नहीं समझिया गया। जरा किते अपने इतिहास ते झात मार के वेखो, इतिहास के बरकियां नूं जदा फोड़ के तां वेखो, उन्हां बरकियां दे विच ओ खून दे नाल लिखे गए ओ सतरां ते ओ लाइनां ने जिन्हां नूं पढ़ के दिल दियां भुब्बां निकल जांदियां ने, जिन्हां नूं पढ़ के बंदा हौके हारे हो जाता है। साडे इतिहास विच किड्डा सोहना लिखिया है। साडे घरे तां बजुर्ग माता चढ़ाई कीती है ना, जरा झात मार के वेखो गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज के दरबार के अंदर। गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी के 6 बच्चे सन, 5 पुत्र सन और 1 पुत्री सी। 5 पुत्रां दे विचों 1 पुत्र जिहदा नाम इतिहास विच बाबा अटल राय आया, छोटी जी उम्र दे विच चढ़ाई कर गया। चढ़ाई भी किवें कर गया, बच्चियां नाल खेड रहा सी, खेडदे खेडदे अकाल पुरख नूं प्यारा हो गया। जदों संगतां नूं पता लगा, सिखां नूं पता लगा, सारे लोग आए। मैं गल कर रहा कि साडे विच मौत नूं चढ़दी कला च समझिया गया, ढैंदी कला च नहीं। वो किवें समझिया गया, इतिहास विचों तुहाडे सामने रख रहा। बड़े लोग गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज के चरनां च आए, आके जिवें तुसीं आए हो ना, आके परिवार नाल अपना दुख साझा कर रहे हो, इवें उदों भी लोग आए ते आके दुख साझा करन लगे। जदों दुख साझा कर रहे ने, उस दुख साझा करन दे विच गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी का सांढू भी आया। सांढू का नाम सीगा साईं दास। वो भी आया ते आके गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह महाराज नूं कहण लगा, सतगुरु जी बड़ा माड़ा होया, बहुत माड़ा होया। ये लफ्ज़ असीं भी वरतदे हैं। असीं भी जदों किसी दे घरे जाइए ना, असीं यही कहने आ, चाहे बजुर्ग 100 साल का होवे ते चाहे कोई नौजवान होवे या बच्चा होवे, आपां यही कहने आ जी बड़ा माड़ा होया। साईं दास ने भी यही आख्या बड़ा माड़ा होया। तो अग्यों मीरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह कहन लगे की होया। कहंदे की होया साईं दास? कहंदे जी बड़ा माड़ा होया। कहंदे किवें बड़ा माड़ा होया? साईं दास गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी के चेहरे वाल वेखदा, वो चेहरा उवें ही दग मारिया है। उस चेहरे ते ओही नूर है, उस चेहरे ते ओही लाली है, उस चेहरे ते ओही चढ़दी कला है। जदों सतगुर दियां अखां दे विच अखां पाईयां, सतगुरु जी कहण लगे साईं दास होया की है? संगत सारी बैठी इकट्ठ वेख रहा है। सतगुरु जी ने साईं दास नूं आख्या, साईं दास आ फड़ तीला। वेखो सतगुरु गुरु समझाउंदा किवें है। कहंदे आ फड़ तीला, आ थल्ले धरती कच्ची हो,
इस धरती कच्ची ते तीले दे नाल लकीर खिंच दे। साईं दास ने अपने हाथ दे नाल लकीर खिंच दी। थोड़े ही वक्त बाद गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह कहन लगे साईं दास जी मिटा दो। साईं दास ने मिटा दी। पातशाह ने सवाल किया साईं दास नूं, कहंदे साईं दास जदों लकीर खिंची सी उस वेले तेनू कोई खुशी हुई सी? कहंदे ना जी, तुहाडा हुक्म सी लकीर खिंची है। कहंदे जदों मिटाई है उस वक्त तुहानू कोई दुख होया, कोई तकलीफ हुई? कहंदे जी ना, तुहाडा हुक्म सीगा मिटा दी है। पातशाह कहन लगे साईं दास बस साडे घरे वापरे भाणे नूं भी इउं ही समझ, ये जो असी तुरे फिरदे ने रब दीआं खिंचियां होईयां लकीरां ने। ये साडा पुੱਤ जो चला गया ने रब दी खिंची हुई लकीर सी। जिस दिन उन्हें खिंची सी साडे घरे आया, जिस दिन उन्हें मिटा दी साडे घरों चला गया। ये रब दी खिंची हुई लकीर है। तो वेखो गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज मीरी पीरी दे मालक ने किवें समझाई रमज कि असी मौत नूं भी चढ़दी कला दे विच समझना है। एक छोटी जी बुजारत दे द्वारा साहब ने एक किड्डी वड्डी गल समझा दी। एक किड्डी वड्डी गल जिहड़ी आ पल्ले दे विच पा दी, पल्ले बन दी कि सिखा तू अपने घरे होई मौत नूं ढैंदी कला दे विच नहीं लैना, चढ़दी कला च लैना है। क्योंकि बाणी दे विच जगह जगह ते टकोर लाई गई है, जगह जगह ते ये गल समझाई गई है। बाणी विचों कुछ प्रमाण मैं देण लगा। आ बजुर्ग बैठे ने विच, इन्हां बजुर्गों ने वो दिन देखे ने, शायद नौजवानों ने ना वेखे होण। आ बजुर्ग माइयां ने वो दिन वेखे होणगे। साडी खेतीबाड़ी दी उदाहरण है। हुण ते साडे समरसीबल पंप लग गए ने। एक दिन ऐसा भी सीगा जदों साडे खेतां दे विच हरट चलदे सन। हरटां दे दुआले बलद घुमदे सन। सतगुरु जी ने ओदी उदाहरण बाणी दे विच लई है। जिन्हां ने हरट वेखे होण या चलाए होण वो इस गल नूं आसानी नाल समझ जाणगे, वो पकड़ जाणगे। हरट दी उदाहरण साहब ने बाणी चलाई। कहंदे वेख हरट दे वल, हरट चल रहा है, ओदी माल दे नाल टिंडां लगियां ने। एक पासों टिंडां पानी दियां भर रहीआं ने ते दूजे बन्नों खाली हो रही ने। वो माला थले जा रही है, एक पासे भरदी आउंदी है, दूजे बन्ने खाली होई जाती है। एक पासे भरदी आउंदी है, दूजे बन्ने खाली होई जाती है। पातशाह ने उदाहरण दी, कहन लगे जैसे हरट की माला टिंड लगत है, जैसे हरट की माला टिंड लगत है। कहंदे जिवें हरट दी माला दे नाल टिंडां लगियां ने, एक सखणी, सखणी दा भाव है खाली हो गई। कहंदे एक खाली हो जाती है, एक फेर भरियत है, एक दोबारा फेर भर जाती है। कहंदे तैसा ही ये खेल खसम का ज्यों उसकी वडियाई। कहंदे संसार भी एवें ही है। जिवें खूह दी एक टिंड पानी दी भर रही है, एक बन्ने खाली हो रही है, संसार भी एवें दा ही। एक बन्ने जी मर रहे ने ते एक बन्ने पैदा हो रहे ने। कल्ला ये नहीं कि मौत ही हो रही है, नहीं, हर सैकंड दे विच मौत भी हो रही है, हर सैकंड दे विच जन्म भी हो रहा। साहब ने यह गल किन्ने समा पहला बयान कर दी, किन्ने समय पहला दस दी। सो साहब कहन लगे जैसे हरट की माला टिंड लगत है, एक सखणी एक फेर भरियत है, तैसे ही ये खेल कसम का ज्यों तिसकी वडियाई। उन्होंने इस मौत नूं वाहिगुरू दी वडियाई आख्या, ये ओदी वडियाई है। इवें ही एक उदाहरण मैं होर देण लगा। वो उदाहरण पहली खेतीबाड़ी दी वीरां दे मुतलक सीगी, हुण दूजी उदाहरण बीबियां दे मुतलक है। ध्यान नाल सुनना जी। दूजी उदाहरण है घरां दे विच बीबियां पहलां अपने हथी कपड़े सिया करदियां सन, अपने हथी तोपे लाया करदियां सन। बाबा फरीद साहब ने यदी उदाहरण दी है। बाबा फरीद साहब कहंदे किसे सियाणी सवाणी ने घर विच कपड़ा सीता, सूट सीता किसे दा, जेदा सीता सी वो पुछण लगी भैणे आ जेड़े तू तोपे लाए ने दस किन्नी क देर चलणगे, ये हंड भी जाणगे कि नहीं हंडणगे, इन्हां च भोरा जान भी पाई है कि नहीं पाई है। तां सिउण वाली कहण लगी भैणे
होर दा पता नहीं, सूट पाट जाएगा पर तोपे नहीं पाटणगे। आपां जदों सीण वाले दे कोल जाने आ, दर्जी दे कोल जाने, वही कहता है ना कि जेड़े तोपे मैं लाए ने ये उधड़नगे नहीं, सूट पाट जाएगा। ਇਹਦੀ उदाहरण बाणी च है। बाबा फरीद साहब कहते, बाबा फरीद साहब की बाणी बड़ी मिठी है। बाबा फरीद साहब कहते, फरीदा खिंथड़ मेखा अगलियां। खिंथड़ का भाव हुंदा है कपड़ा, वो कपड़ा जेड़ा टेढ़ा मेढ़ा होवे ते जिन्हों एक सियाणी सवाणी सीव के ओदा एक सोहना जेड़ा है कमीज बना देंदी है, कुर्ता पजामा बना देंदी है, सूट बना देंदी है। बाबा फरीद साहब कहने लगे, फरीदा खिंथड़ मेखा अगलियां। कहते खिंथड़ नूं जेड़ियां कपड़े नूं लगियां होईयां जेड़ियां मेखां ने ना, मेखां दा भाव है तरोपे। तरोपियां दी तां गारंटी दित्ती जा सकती है। दर्जी गारंटी दे सकता है कि ये सूट पाटण तो बाद उधड़नगे। जिंद ना काई मेख, पर इस जिंद नूं, ये जिहड़ा साडा शरीर है ना, इनू कपड़ा आखिया बाणी दे विच। आपां पढ़दे हैं ना आसा की वार, उहदे च गुरु पातशाह कहंदे ने, कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावड़ा। मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावड़ा। ये कपड़ा है ते इस कपड़े नूं सिउता काहदे नाल है? सवासां दे नाल। तोपे काहदे लाए ने? सवासां दे लाए ने। बाबा फरीद साहब कहन लगे, कहंदे फरीदा खिंथड़ मेखा अगलियां, जिंद ना काई मेख। जिंद नूं कोई मेख नहीं, जिंद नूं कोई तरोपा नहीं लगा। इत्थे ते ध्यान मार के वेख, जिंद ना काई मेख, वारी आपो अपनी चले मशायख शेख। इत्थे ते सारियां दी वारी है, इत्थे ते सारियां दी वारी है, इत्थे सारियां दी मिट्टी होनी है। अब बच्चे खेडदे ने ना घरां दे विच, कदी कोई खेड खेडदे ने, कदी कोई खेड खेडदे ने। ਜਿਹੜੀਆਂ संसार च खेडां खेडियां ਜਾਂਦੀਆਂ ने, हो सकता है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ना आवे, खेड खत्म हो जाए। ध्यान नाल फिर समझना इस गल नूं। छोटे बच्चे खेडदे ने, वड्डे खेडदे ने। हर एक खेड दे विच हर एक खिडारी दी वारी हुंदी है कि इन्ने समय बाद वारी आएगी, पर हो सकता है किसी खिडारी दी वारी ना आवे। पर आ जिहड़ी जिंदगी दी खेड है ना, इस खेड दे विच हर किसी दी वारी आउणी है। आपां पढ़दे आ ना, वारी आपो अपनी चले मशायख शेख। इत्थे सारियां दी वारी आउणी है। किसी दी 60 साल च आ जानी है, किसी दी 50 साल च आ जानी है, किसी दी जमदे आ जाती है, किसी दी थोड़ी देर बाद आ जाती है, किसी दी 50 साल च आ जाती है, 100 साल च वारी सारियां दी आउणी। इसे करके बाणी दे विच इस गल ते जोर दिता गया कि ये सुनेहा सारियां दे घरे आउणा, ये चिट्ठी सारियां दे घरे आउणी है। घर घर इहो पहुंचा सदड़े नित पवन। ये पहुंचा, पहुंचा दा भाव है चिट्ठी। ये चिट्ठी सारियां दे घरे आउणी है, कोई ऐसा कर नहीं। इसे करके सिखां दे घरां विच इस गल नूं समझ के मौत नूं चढ़दी कला च समझिया गया, मौत नूं ढैंदी कला दे विच नहीं लिया गया। हुण मैं थोड़ा जिहा इतिहास दा पक्ष रखण लगा। सिखां ने मौत नूं कित्थों क तक चढ़दी कला च लिया है, कित्थों क तक लिया, इस गल नूं हुण समझिओ। इस गल नूं थोड़ा जिहा समझण दी कोशिश करिओ कि साडे विच मौत किड्डी क चढ़दी कला च हंडाई गई है ते माणी गई है। गुरु तेग बहादुर महाराज जी का जिक्र आ महीने दे विच चल रहा है, तुसी टीवी दे विच भी रोज़ सुनदे हो। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी का 400 साला प्रकाश पुरब इसे महीने दे विच आ रहा है। मैं उन्हां दे मुतलक ये बात कर लगा। उन्हां दे नाल 3 ਸਿੰਘਾਂ ने शहीदियां दित्तियां, भाई मती दास जी, भाई सती दास जी ते भाई दयाला जी। भाई दयाला जी नूं देग चों बालिया गया, भाई सती दास जी नूं अग दे नाल रूह दे विच लपेट के साड़िया गया, अते भाई मती दास जी नूं आरे दे नाल चीरिया गया। मैं गल करनी है भाई मती दास जी दी। काजी खलोता है,
ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬਕਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆਰੇ ਦੇ ਲਈ ਚੀਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲੱਕੜ ਵਾਲਾ ਮਿਸਤਰੀ ਆਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਣੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੈਮਾਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਕਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਚੀਰ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਡੁੰਬਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਕਾਜੀ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦਾ, ਕਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਪਵਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ ਜਲਾਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਚੀਰ ਸਿੱਧਾ ਪਾਈ, ਚੀਰ ਸਿੱਧਾ ਪਾਈ, ਚੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਢ ਨਾ ਦੇਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਤੇ ਕਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪਿਆ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਤੀ ਦਾਸਾ ਡਰ ਗਏ, ਘਬਰਾ ਗਏ, ਡਰ ਗਏ, ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੀਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਚੀਰ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚੀਰ ਸਿੱਧਾ ਪਾਇਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ, ਹੁਣ ਮੌਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੁਣਿਓ, ਕਿਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਲਾਦ ਚੀਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਥੱਲੇ ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੜਫਦਿਆਂ ਤੜਫਦਿਆਂ ਚੀਰ ਟੇਢਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਬਲ ਹੈ ਉਹ ਬਲ ਲਾ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੜਫਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟੇਢਾ ਤੇ ਵਿੰਗਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਚੀਰ ਸਿੱਧਾ ਪਾਇਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਲੋਥ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀਰਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਹੱਥੜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹਿਆ ਹੈ, ਵਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੌਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਵੱਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੋਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ। ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਛਾਵੇਂ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੀਆਂ ਡਿੱਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ, ਬਾਪੂ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਬੇਬੇ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਾਪਾ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਮੰਮੀ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵ 1708 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ 1799 ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਲਗਭਗ 90 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਉਹ ਖੂਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਹੀ ਮੌਤ, ਮੌਤ ਹੀ ਮੌਤ, ਮੌਤ ਹੀ ਮੌਤ ਸੀ।
होर कुछ नहीं सी। ये 90 सालों का इतिहास कभी फरोल के वेखो। ये वही दिन ने जदों साडे सिरां दे मुੱਲ पए। ये वही दिन ने जदों साडियां बीबियां दे गलां दे विच बच्चियां दे हार पाए गए। ये वही दिन ने जदों लाहौर दे विच साडे सिरां दे मीनार चिणे गए। कदी सुने कि बंदियां दे सिरां दियां भी दीवारां बणीआं होणगीआं? कदी सुनिया इतिहास विच? दीवारां ये तो सुनिया सी पत्थरां दियां बणीआं होणगीआं, ये तो सुनिया सीगियां इट्टां दियां बणीआं होणगीआं। पर ऐसे दिन भी आए जदों साडे सिरां दी दीवारां चिणीआं गईआं, मीनार चिणे गए। मैं उन्हां दिनां दी दास्तां तुहाडे सामने रखण लगा। बड़ा औखा समा चल रहा सी। एक अखाण प्रचलित हो गई, पत्ता पत्ता ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ वैरी। ये तुसीं कई वारी सुनिया होना, पर कदी ये भाव सुने ਇਹਦਾ मतलब की है। वैसे गाउण वालियां ने, ये गायकां ने गा दिता, पर कदी ਇਹਦਾ मतलब समझियो कि ये अखाण बनी क्यों, ਇਹਦੇ पिछे रमज की सी। पत्ता पत्ता ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ वैरी, ਇਹਦਾ भाव ये सीगा जकरिया खान ते मीर मन्नू, ये दो ऐसे जालम हाकम होए ने। इन्हां ने सिखां नूं ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ एक खास फौज का गठन किया सी। ਉਹ फौज ਇੰਨੀ ਕੁ ट्रेंड सी, ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਹ ਨਿਪੁੰਨ ਸੀਗੀ कि जिथे भी जंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੜੀ ਜੀ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ आवाज़ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। जिथे भी जंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੜੇ ਜੇ ਪੱਤੇ ਹਿੱਲਣੇ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਛਰ-ਛਰ ਦੀ आवाज़ ਆਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ला देना कि इत्थे ये आवाज़ तां आ रही है कि इत्थे कोई बंदा लुकिया या कोई बंदा गांह पिछां हो रहा है। इसे करके खान बनी पत्ता पत्ता ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ वैरी, भाव कि जंगल दे विच उत्थे भी निशाने लाए गए, जिथे हवा दे नाल भी पत्ते हिलने उत्थे भी गोलियां ते तीर मारे गए। ऐसा साडे नाल कीता गया। ऐसे दिनां दी दास्तां तुहाडे सामने रखण लगा। माझे दी जगह है, माझे दी धरती है, भाव अंमृतसर का इलाका है। उस इलाके दे विच दो, एक 40 कुछ साल का बाप, आपां नौजवान ही कह सकते हैं, ते एक उहदे नाल उहदा अपना लड़का जिहड़ा 8 कुछ सालां दा है। दोवें जंगल की वीणी दे विच फिर रहे ने। जदों फिर रहे ने तो वह उधर जा रहे ने जिथे सिखां दा जथा लुकिया होया है, तो उस जथे च जाके उन्होंने रलना है जंगल दे विच। पर किस्मत ने ऐसा फेर फेरिया कि वह दोवें जाने उस फौज के हथीं लग गए। उस फौज नूं उन्हां दी पैड़ का पता लग गया, वो फौज के हथीं लग गए। जदों हथीं लग गए उन्होंने उन्हां दोवां नूं फड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने दिमाग 'च ये गल आई कि इत्थे दो जाने नहीं, इत्थे बंदे होर भी होणगे। क्यों ना होवे कि इन्हां दे कोलों उन्हां दा राह पुछया जाए, क्यों ना होवे कि इन्हां दे कोलों उन्हां दा रस्ता पुछया जाए, तो बहुतियां नूं फड़ के लिजाया जाए। जिन्ने ज़्यादा सिख होणगे इनाम उन्ना ज़्यादा मिलेगा, तरक्की उन्नी ज़्यादा मिलेगी। उन्होंने की कीता, उस नौजवान सिख नूं आख्या, भाई तुसी इकल्ले नहीं हो, इत्थों तुहाडे नाल होर भी ने, जिहड़े होर ने उन्हां दा भी पता दस दो, तुहानूं छड्ड देवांगे, तैनूं भी छड्ड देवांगे, तेरे बच्चे नूं भी छड्ड देवांगे, दोनां नूं छड्ड देवांगे। अगे उस सिख ने वेखो की आख्या। हुण सुणियो ध्यान नाल कि मौत चढ़दी कला च किवें है। अग्गों सिख जिहदे सामने शर्त रखी गई कि सानूं इशारा करके ही दस दे कि इधर नूं ने लुके होए, असीं आपे लभ लवांगे। वो कहन लगा कोई गल नहीं, दस देना, पर मेरी भी तुहाडे अगे एक शर्त है। कहंदा एक छड्ड के 100 शर्तां। किहड़ी तेरी शर्त है? की चाहिदा? पैसा चाहिदा, जमीन चाहिदी है, घर चाहिदा, की चाहिदा? जो चाहिदा दस, तैनूं दवांगे। कहंदा नहीं मैनूं कुछ नहीं चाहिदा, मैनूं बस इन्ना एक चाहिदा कि आ जिहड़ा मेरा बच्चा है ना, इहदा कतल कर दो। फिर गल नूं समझिओ, समझो इस गल। उन्होंने कहा पैसा चाहिए, जमीन चाहिए है, घर चाहिए, की चाहिए? तेनों देने आ, तू इशारा करके दस दे भी इधर नूं ने। वो कहता मैनू कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी शर्त तुहाडे सामने है कि आ जिहड़ा मेरा बच्चा है ना, मेरी अखां दे सामने कतल कर दो। कहंदे ये किहड़ी वड्डी गल है, असीं लाहौर खड़ के भी मारना है, इत्थे मार देने आ, इत्थे शहीद कर देने आ।
इत्थे कतल कर देने आ। एक ने इधरों फड़िया, एक ने इधरों फड़िया, एक ने तलवार फड़ी, बाप दियां अखां दे सामने बच्चे दे 2 टोटे कर दिते, बच्चे दे खून दी तीरी बाप दे मूँह ते पई, बच्चा शहीद हो गया। कहंदे भाई हाँ दस, तेरी शर्त पूरी कर दी है, हुण दस भी तू सिखां दा पता दस सानू किधर है। कहंदा किवें तुहानू सिखां दा पता दस दवां, किवें दस दवां। कहंदा तू साडे नाल इकरार कीता सी, वादा कीता सी। कहंदा कीता सी। कहंदा काहदे लई? कहंदा इस करके कीता सी कि मेरा बच्चा छोटा है, 8 साल दा है, ये छोटा है, इनू उस रस्ते का पता है, हो सकता है तुहाडीआं गल्लां च आ जाए, हो सकता है तुहाडे कहने च आ जाए, तुहाडीआं लालच च आ जाए, तुहाडीआं मोमनो ठगणियां दे विच आ जाए, ते आके तुहानू उधर लै जावे जिथे होर बच्चे सिखां दे बैठे ने ते सिख भरा बैठे ने। मैं अपने एक बच्चे की गलती करके अपने उन्हां भरावां नू मरवा नहीं सकता। जिहड़ी आ खाण बनी है ना, सिख नू सिख ना मारे ते सिख कदे ना हारे, ये सच्ची है। सिख नू सिख ने मारिया, रुख नू कुहाड़े ने नहीं वड्डिया, रुख नू कुहाड़े ने नहीं वड्डिया, रुख नू दस्ते ने वड्डिया। कुहाड़ा कला की कर सकता है? हथ च कला कुहाड़ा फड़ के जिन्नी मर्जी सट मारी जाओ, रुख कदी नहीं वड्डिया जाएगा। रुख वड्डिया गया ते जदों उस रुख की डाहनी का कुहाड़े दे विच दस्ता पिया, उस कुहाड़े ने रुख दीयां जड़ां तक नहीं रहन दित्तियां। सो उस सिख ने अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी, अपना बच्चा कुर्बान कर दिता, पर वो राह नहीं दसिया, वो पैंडा नहीं दसिया। ये साडियां सिखां दे सामने मौत की चढ़ती कला किन्ना औखा मंजर होवेगा कि एक बाप जदों अपनियां अखां दे सामने उहदे कोल राह भी है, उहदा पुत्त भी बच सकता है, वो आप भी बच सकता है, पर उन्हें वो राह नहीं चुनिया, क्योंकि वो राह सीधा किधर नूं जांदा है? बदफैली वाल नूं जांदा है, बर्बादी वाल नूं जांदा है। इसे करके जिहड़ी गल दा मैं जिक्र तुहाडे नाल कर रहा कि साडे विच मौत ढैंदी कला च नहीं, साडे विच मौत चढ़दी कला च है। इसे करके सिखां ने मौत नूं हस हस के छाती दे नाल लाया, गलवकड़ियां पाईयां अते चढ़दी कला दे विच रहे, हमेशा मौत नूं परणाउंदे रहे, वरदे रहे। इसे करके साडे विच जिन्ने भी मौत दे नाल संबंधित संस्कार ने सारे चढ़दी कला च ने। जिहदा एक दा मैं जिक्र पिछे कर आया कि एक बन्ने प्राणी की लाश पई हुंदी है, दूजे बन्ने मिठा बनता है, ये चढ़दी कला का प्रतीक है। दूजा, लोकी अपने घरां दे विच अग नहीं बालदे, साडे घरां च उसे दिन तो अग बल जाती है, चढ़दी कला का प्रतीक है। ये निक्कियां निक्कियां गल्लां चढ़दी कला का प्रतीक हैं सतगुरु जी ने। ते ये गल्लां कित्थों आईयां? ये सारियां गल्लां सद बाणी चों आईयां। सद बाणी एक बाणी है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी च, सद बाणी रामकली राग दे विच कदी मौका मिलिया तो जरूर पढ़ियो। हो सकता जे घर दे विच भोग पिया होवे ते भाई साहब जी हुणां ने अखीर ते तुहानूं सुणाई भी होवे। वो बाणी जिहड़ी है ना सद बाणी रामकली राग दे विच है। वो बाणी की है? वो उस वेले की कहानी है जदों गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज इस संसार तो चले सन, ते उन्हां दे लागे भाई सुंदर जी बैठे सन। भाई सुंदर जी कौन सन? ये गुरु अमरदास महाराज जी के परिवार विचों ही सन। उन्हां दे अपनी अंश बंश सीगा। उन्होंने ये बचन लिखे, जेड़े उथे वो बचन लिखे गए वो बड़े भावपूरक ते बड़े कीमती हैं। उथे की लिखिया गया? कहंदे सतगुर भाणे अपने बै परिवार सदाया। कहंदे गुरु अमरदास ने अपना सारा परिवार सद लिया। जदों वो चले सन ना ते सारा परिवार सद लिया, ते परिवार सद के की कीता? सारियां नूं कहण लगे मेरी गल सुनो, मेरी गल सुनो। कहंदे हाँ जी दसो। उथे किनू किनू सद्या गया? जिन्ने भी उन्हां दे प्यार वाले सन सारे सद लए, सिख सद लए, चाचे ताए मामे भूआ फुफड़ सारे सद लए, ते सारियां नूं सद के की कहण लगे गुरु अमरदास? कहंदे सतगुर भाणे अपने बै परिवार सदाया, मत मैं पिछे कोई रोब सी। ये गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च लिखे हुए ने। सिखां ने इहदे ते पहरा दिता।
इस गल ते पहरा दिता। गुरु अमरदास महाराज ये गल कह के गए, कहते मता मेरे पिछे रोयो, मत में पिछे रोब सी, मेरे पिछे रोयो ना। कहते जी फिर करिए की, करिए की? लोग तो यही करते ने। कहते करिए की? कहते मत मैं पिछे कोई रोब सी, सो मैं मूल ना पाया, वो मैनू चंगा नहीं लगेगा। कहते करना की है? कहते इस पवित्र बाणी दे नाल जुड़ियो, इस बाणी का आसरा लियो। ये बाणी तुहानू आसरा देगी, इस औखे समय दे विच डोलण नहीं देगी। ये बाणी तुहानू तकलीफां चों दुखां चों कढ लेगी। ये बाणी उवें सहारा देगी जिवें पानी दे विच किश्ती सहारा दिंदी है। ये बाणी उवें सहारा देगी जिवें अंधेरे दे विच दीवा सहारा दिंदा है। ये बाणी उवें सहारा देगी जिवें ये थंम लैंटर नूं सहारा दे रहे ने। ये बाणी तुहानू सहारा देगी, ये तुहाडा सहारा बन जाएगी, आसरा बन जाएगी। इस बाणी का आसरा लियो। सो बाणी दे इन्हां बोलां ते सिखां ने वाकिया पहरा दिता, रोए नहीं। साडे इतिहास च एवें होया है, साडे इतिहास च एवें ही होया है। कई एक मिसालां नहीं, कई मिसालां ने, दो तीन तो मैं दे आया। एक मिसाल होर दे के मैं अगे वधन लगा। चमकौर दा साका तुसीं सारिआं ने सुनिया। जदों गुरु कलगीधर महाराज उहदे चों रात नूं निकल के गए, की होया? सामने किन्ना दियां लाशां आईयां, उथे की होया? वो सारी वारता तुहानू पता है, उहदे विचों मैं टूक मात्र जिक्र कर लगा। जदों तुरे थोड़ी थोड़ी लो सी, धुंध भी बड़ी सीगी, पर साहिबजादियां दे ओ केसरी बस्तर जेड़े ने सामने चमक रहे सन। वैसे शहीद तां वैसे ही चमकदे ने, वो सामने चमक रहे सन बस्तर। जदों साहब उन्हां दे लागियों दी उस उन्हां लाशां दे उपरों दी लंघ गए, उन्हां दे उत्तों दी चले गए, ते भाई दया सिंह जी दे कोलों लंघिया ना गया, कोल बह गए। सतगुरु जी गांह वधे। जदों वेख्या कि पिछे पैरां दी कदमां दी आवाज़ नहीं आई, तो पिछे मुड़ के की देखिया कि भाई दया सिंह जी साहिबजादियां दी लाश दे कोल बैठे ने। इस मंजर नूं समझियो कि साडे गुरु दे अंदर मौत संबंधी किन्नी क चढ़दी कला, किन्नी क उच्ची अवस्था होवेगी। उत्थे फिर जो होया वो किड्डा कमाल दा है। जदों सतगुरु जी वापस आए, भाई दया सिंह दे सामने अखां च अखां पा के तकिया। हाँ भाई दया सिंह जी की कर रहे हो? आओ चलिए, वक्त बड़ा थोड़ा है, समा बड़ा थोड़ा है, आओ चलिए। कहंदे जी नहीं, थोड़ा जिहा वक्त तां दे दो कि इन्हां बच्चियां दीयां लाशां ते मैं कम से कम वस्त्र तां पा देवां। जिहड़ी अखीरली रीत हुंदी है, मैं उस रीत नूं तां निभा देवां, वो रीत तां पूरी कर देवां। वेखो गुरु कलगीधर महाराज दे वचन, कहंदे भाई दया सिंह जी तुहानू खुली इजाजत है, तुसी पा सकदे हो, पर याद रखना इन्हां दोवां दी लाशां ते ना पायो। इन्हां दे नाल 30-35 होर भी शहीद ने। जे ते सारियां दियां लाशां ते पाउण लई तुहाडे कोल कफन है, बस्तर है, तां पा दो, नहीं तां इन्हां दोवां नूं भी छड्ड के साडे मगर तुरे आओ। ये उस चढ़दी कला का प्रतीक है मौत के संबंधी। ये वो चढ़दी कला है जिहड़ी साडे इतिहास विचों साडे सामने आई है। सो मैं बेनती कर रहा सा, फिर मैं समाप्ति वाले बन्ने नूं वधां कि साडे विच मौत चढ़दी कला दे विच है, पर अज दे समय च असीं देखदे आ कि मौत साडे विच ढैंदी कला च आ गई है। असीं ढैण लग पए हां, ढैंदी कला वाले पासे नूं जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कर्म कांड ने जिहड़े साडे घरां दे विच प्रचलित हो गए ने, जिहड़े असीं कर लए ने। खिमा ना करना, गुस्सा ना करना, पर गल सच्ची है, गल सच्ची है। बजुर्ग नूं लोड़ घ्यो दी मौत तो पहला है कि मौत तो बाद है। बापू खुशकी ना मर जांदा है, बापू दियां लत्तां तो खुशकी जिहड़ी आ उड़ रही है, पर मौत वेले मौत तो बाद उहदे मूँह च घ्यो पाया जांदा है। उन्होंने लोड़ मौत तो पहला सी। बादां च असीं महंगियां महंगियां लोइयां, महंगे महंगे कपड़े अग दी भेंट कर देने आ, और उस तो पहलां दे हालात वेखो। बापू दा झग्गा पाटा होया है, उहदे कशहरे नूं मैल लगी हुई है, उहदे बर्तनां वल ध्यान मार के वेखो। असीं इस गल नूं समझिए, इस चीज़ नूं समझिए। सतगुरु गुरु नानक साहब ने हर द्वार खलो के की होका दिता सीगा, की कहा सीगा?
ਉਥੇ ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਤੀ ਉਸੇ ਹੋਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸੂਰਜ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਰਾਂ ਤੱਕ, ਮਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫੇਰ ਨਾ ਹਟੇ, ਫੇਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਧਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਇਧਰ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਖੇਤ ਬੀਜ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਪਾਣੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਗਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੈ, ਜੇ ਖੱਟੈ ਘਾਲੈ ਦੇ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਨਾਨਕ ਹੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ, ਸੋ ਮਿਲੈ ਉਹ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੀ? ਜੋ ਖੱਟੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੱਟ ਲਿਆ, ਘਾਲ ਹੈ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਜੋ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੈ, ਜੇ ਖੱਟੈ ਘਾਲੈ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਵੀ ਵੇਖਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ ਬਾਪੂ ਦੀ ਡੰਗੋਰੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਆਓ। ਬਾਪੂ ਦੀ ਖੁੰਡੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਆਓ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਆਓ। ਬਾਪੂ ਦਾ ਬਿਸਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਆਓ। ਬਾਪੂ ਦਾ ਮੰਜਾ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਹਿਮ ਕੀ ਹੈ, ਡਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਤੇ ਉਸ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਚਿਮੜ ਜਾਏ? ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਘਰ ਵੀ ਬਾਪੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਚਿਮੜਨਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਚਿਮੜ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਬਾਪੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਪੈਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾਹ ਦੇਣਾ, ਇੰਨੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਪੈਲੀ ਵੀ ਬਾਪੂ ਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਚਿਮੜਨਾ ਤੇ ਉਸ ਪੈਲੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਚਿਮੜ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਤੇ ਪੜਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਡਾਂਗ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਡਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਗੇੜਾ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਐਸੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਜੀਂਦੇ ਜਾਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਧੜਾ ਧੜ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿੰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ? ਇਹ ਉਹੀ ਬਾਪੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੌਵਾਂ ਤੇ ਸੱਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਧੱਕ ਦਿਓ। ਉਹ ਘਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਬੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਕਿਤੇ ਵਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਵਹਿਮ ਨਾ ਜੋੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਵਧਾ, ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੋਲ ਕਵਾਂਗਾ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇਹ ਵਹਿਮ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਾਏ ਬਾਪੂ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਬੇਬੇ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਵਹਿਮ ਬੀਬੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਹਿਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੇ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਧਿਆਨ ਸੁਣਨਾ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਮੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਮਝੀਏ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੱਜੈ
ध्यान नाल समझना। हुण बंदा मौत तो बाद जांदा कित्थे है, की उत्थों वापस मुड़ के आउंदा है? बाणी की कहंदी है? कहंदे एक दज्जै, दज्जै दा मतलब है साड़ देना। कहंदे कई ने वो साड़ दिते, एक दज्जै एक दब्बीऐ, कई ऐसे ने जिन्होंने धरती च दब दिता। एक ना कुत्ते खाहे, कई ऐसे ने जिन्हों के वाली वारस नहीं होंगे, उन्होंने कुत्ते खा जाते हैं, भाव कोई आवारा जानवर खा जाता है। देखो बाबे ने सारियां दी गल कीती है, बाबे ने कोई पक्ष छड्डिया नहीं। बाबे नानक ने कहते एक दज्जै एक दब्बीऐ, एक ना कुत्ते खाहे, एक पानी विच उसट्टीऐ। कई ऐसे ने जेड़े पानी में ही सुट दिते जाते हैं, कई आप भी नहर च छाल मार जाते हैं, उन्होंने लाश ही नहीं लभदी, या गहरे समुद्रां दे विच जेड़े ने डुब जाते हैं, उत्थे उन्हां दी अंतिम क्रिया हो जाती है। एक पानी विच उसट्टीऐ, एक पी फिर हसन पाहे। हसन कहंदे ने खूह दा किनारा। आ टाटा दीयां गड्डियां तुसां ने वेखियां होणीਆਂ ने, टाटा दीयां घरां दे विच ਜਿਹੜਾ ਇਹ टाटा है ना, ਇਹਦਾ धर्म सीगा पारसी, ਇਹਦਾ धर्म सीगा पारसी। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। पारसी भी एक धर्म सीगा भारत की धरती ते, पर खत्म हो गया। हुण थोड़े जे बंदे रह गए ने ਜਿਹੜੇ महाराष्ट्र ते होर बन्ने रहिंदे ने। ਇਹ लोग की करते सन, बंदे नूं अंतम जदों गुजर जांदा सी, ना ये साड़दे सी, ना ये दबदे सी, ना ये रोड़दे सी। ਇਹ की करते सन, इन्हां ने खूह बनाया सी। एक खूह दे उपर एक जंगला लाया सी ते बंदे दी लाश नूं उस जंगले ते रख दिंदे सन। वेखो बाबा नानक कित्थों तक खोज करके ले आया। उत्थे रख दिंदे सन ते वो लाश धीरे 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 आपे गल के खूह च सड़ जांदी सी। उन्हां दा इह तरीका सीगा। तो सतगुरु ने सारियां दा जिक्र कीता, कहंदे एक दज्जै एक दब्बीऐ, एक ना कुत्ते खाहे, एक पानी विच उसट्टीऐ, एक पी फिर हसन पाहे। आई तरीके ने केड़े केड़े? दज्जै दब्बीऐ, कुत्ते खाहे, एक पानी विच उसट्टीऐ, एक पी फिर हसन पाए। 5 तरीके ने बंदे दे अंतिम संस्कार दे दुनिया च। 6वां तरीका नहीं कोई भी अजे भी। इवें अंतिम संस्कार हो जाता है बंदे का। फिर की होंदा है? अगे बाबा नानक कहंदा है, कहंदा नानक एम न जापई, कित्थे जाए समाए। बंदे ने कित्थे जाके समाउणा है, इहदा कहंदे मैनूं भी नहीं पता। फिर समझो इस गल नूं, बाबे नानक दे बोल ने। बाबा नानक आप कह रहे कि मरण तो बाद इंसान कित्थे जांदा है, इहदा किसे नूं पता नहीं। हाँ, इहदा किसे नूं कुछ पता नहीं। इस करके गुरु तेग बहादुर महाराज ने इहदी थोड़ी जी व्याख्या की। थोड़ी जी वो कहंदे ने, गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने थोड़ी जी व्याख्या की। वो कहंदे ने 5 तत्त को तन रचियो, जानो चतुर सुजान, जे ते उपजो नानका, लीन ताहे मैं मान। 5 तत्तां तो पैदा होए सी ते 5 तत्तां च ही समा गए, बाकी की बचिया कुछ भी नहीं। फिर असी कित्थों कही जाने जी हाय बापू आ गया, हाय बेबे आ गई। ये साडी मनौत है। जो चीज़ जिथों आई सी उथे चली गई है। बाणी दे विच बचन वार वार कहे गए ने, पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया, माटी माटी होई एक, रोवण हारे की कौन टेक। किन्ने बचन ने बाणी दे विच। तो असी इन्हां ख्यालों चों बाहर निकलीए, जींदा रहिंदिआं अपने बजुर्गों की सेवा करिए, उन्हां दी जींदा रहिंदे उन्हां दी पुछ करिए। नहीं तो हालात बड़े माड़े हो गए ने। इसे करके धड़ा धड़ तुसीं वेखो बिरध आश्रम बन रहे ने। उन्हां बिरध आश्रमां विच कोई खोजां नहीं हुंदियां, उत्थे कोई बच्चे पढ़न वास्ते नहीं जांदे। उत्थे ओही बजुर्ग जांदे ने जिन्हां नूं घरां विचों बच्चे धक्के दे दिंदे ने, धक्के मार के बाहर सुट दिंदे ने। इसे करके मैं एक इतिहास की गाथा सुना के समाप्ति कर लगा कि बुजुर्गों की सेवा कितनी जरूरी है। एक ध्यान नाल सुनना, गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह महाराज एक दिन अंबरसर तो लाहौर वाले बन्ने जा रहे सन। ध्यान नाल सुनना जी इस गल नूं, बुजुर्गों की सेवा कितनी जरूरी है। उन्हां दे नाल सिखां दा जथा भी सी। जदों जा रहे ने ते परले पास्यों दी 4 बंदे 4 पई चुकी होण,
ਤੇ ਉਸ ਚਾਰਪਾਈ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹਾਏ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਿਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲਾਗਿਓਂ ਦੀ ਐਵੇਂ ਕੰਨ ਖਸਕਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਾਗਿਓਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਾਗਿਓਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਛੋ। ਸਿੱਖ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਰਪਾਈ ਕੋਲ ਆਈ, ਉਹ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਆ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕੁਰਲਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤ ਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਰਿਆ ਤੇ ਕੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੰਜੀ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਚਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਭਰਾ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ 'ਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਬਾਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਪੂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਆਏ ਸਨ ਉੱਧਰ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ 'ਚ ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾਓ, ਜੇ ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਜੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਜਾ ਚੁਕਵਾਇਆ, ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਹੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਰਾਜੀ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸੱਟ ਰਾਜੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਿਆ। ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮਰਿਆ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਜੜ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਬੇਈਮਾਨਾ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ। ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ, ਜੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟਾ ਕਰੇ, ਛੋਟੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਵੇ ਛੋਟਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਧੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਸਿਖਾਈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਕੋੜੀ ਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਵਾਖਾਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਵਾਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਦਵਾਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਸੁਣੈ ਬੇਦ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਕਰੈ ਪੁੰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨ ਕੇ ਜਣੇ ਬਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ ਤਿਨ ਸਿਓ ਝਗਰਤ ਪਾਪ। ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ।
ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਜੀ ਮਾਤਾ ਹਰ ਜੀ ਪਿਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਤੂੰ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਅੰਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਹੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੀਏ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੁਰੀਏ। ਸੇਵਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਐ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਣ ਪਾਈਐ। ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਪਿਆਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਸਮਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਦਾਸ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।